Hi guys, welcome back to BioBuddy, and in this video we will be moving forward with the next topic in the chapter reproduction, and that is double fertilization in flowering plants. Right, so in the previous videos we have covered up all the asexual modes of reproduction, and before this one, I think the 7th part that I have uploaded, so in that video we have just talked about the various parts of the flower and why is flower basically referred to as the main reproductive organ through which the plants can easily reproduce. So in this chapter we have covered up almost entire topics related to the asexual reproduction as well as the flowering plants, and now we'll just study this process of the double fertilization. Right, so first of all one thing needs to be clear in our head. एक चीज़ हमें बिल्कुल clear रखने करके चक्की नहीं है हमारे दिमाग में कि fertilization process क्या होता है. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपने क्लास 7th 8th में भी पढ़ा होगा. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तब तक आपने एग्जैक्टली आपने गैमीट्स एंड प्रोजेनी इनके बारे में नहीं सुना होगा, बट ऑब्वियसली यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म फर्टिलाइजेशन. तो लेट मी टेल यू इन डिटेल. फर्टिलाइजेशन बेसिकली मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. Gametes can also be called as reproductive cells, or it can also be called as sex cells. Right, so now the fertilization process that is taking place in the flowering plants basically happens when gametes from both the male as well as the female parts come and fuse together. Then it refers to fertilization, leading to the formation of zygote. ठीक है, let me just simplify it. What is fertilization? When the gametes come and fuse. One is the male gamete, another is the female gamete. They come and fuse, and due to their formation, what happens? A product called as zygote is formed. राइट, ज़ाइगोट जब फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. लेकिन अब इसमें क्या लिखा है? डबल. डबल मतलब twice. It is happening, something is happening twice. What is happening? Obviously if we are mentioning fertilization, that means fertilization दो बार हो रही है. कौन सी fertilization हो रही है? डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है. किस केस में? प्लांट्स के केस में. तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल मीन्स इट इज हैपनिंग ट्वाइस, एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट एंड द प्रोडक्शन ऑफ ज़ाइगोट आउट ऑफ इट. दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, let's erase this and let's just recall what did we study in the previous video. Right, so in the previous video obviously I will not be telling you in detail, right, so for that you need to go and watch the previous video, but in this video I'll just tell you what actually happens. For example, if I'm drawing the female reproductive part, अगर मैंने बनाया, ठीक है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया. दिस इज नोन एज स्टिग्मा. ठीक है, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर हमने बताए थे क्या होते हैं? ओव्यूल्स. ठीक है, अगर मैं इसको किसी दूसरे वे में रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइंग another circle inside it. This is the circle that I've drawn. Fine, this is the representation of an ovary. Now what is happening? As soon as the anthers, from the anthers the pollen grains, they come and sit on top of the stigma. ठीक है, all these things are explained. I need not repeat in this video. I'm just telling you जितना इसके लिए necessary है to understand the process of double fertilization. Whatever thing is necessary, that only I'll be telling you in this video. So इसमें अब क्या हो रहा है? एंथस से सारे पोलन ग्रेन्स आके कहाँ बैठ जाते हैं? स्टिग्मा पे. राइट, अब क्या होता है? मैनी ऑफ देम ट्राई टू मेक अ पोलन ट्यूब. They have to enter it, right? They have to try entering it, but not all of them try and attain that length of the pollen tube to reach the ovary. ठीक है, but one of them, what happens? It tries and makes a pollen tube and succeeds. अब ये pollen tube कहाँ जाती है? सीधा ओवरी में. ओवरी में जाने के बाद अब क्या हो रहा है? इसने अपना एक वे बना लिया है. ठीक है, जैसे हमारे घर के आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ पे आपने एक रोड बनी है, तो मतलब देयर इज़ दिस वे एंड दिस इज़ लीडिंग यू टू समवेयर.
In the same manner, when the pollen grains, they form a pollen tube. That means that this is the way which is leading them to the ovary. अब ovary के अंदर क्या है? Ovule. अब क्या होगा? यहाँ से 2 male gametes, 2 male gametes. That means you can also say reproductive cells or you can say sex cells. जितने भी होते हैं 2 होते हैं एक पोलन ट्यूब के थ्रू, सारे के सारे मतलब 2 मेल गैमीट्स वो कहाँ आते हैं? नीचे को ट्रैवल करते हैं. दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द ओवरी. अब ओवरी के अंदर हमने क्या बोला? ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स. अब ओव्यूल्स के अंदर व्हाट विल हैपन नाउ? थ्रू द ओव्यूल नाउ इट विल एंटर द इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. ये है हमारा क्या? एम्ब्रियो सैक. तो अब जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है इट इज़ 8 न्यूक्लिएट. 8 न्यूक्लिएट मीन्स इसके अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. कैसे? 1 2 3. दीज आर नोन एज दी एंटीपोडल सेल्स. ठीक है. फिर बीच में आते हैं पोलर न्यूक्लियाई 1 2. ठीक है. 3 + 2 5. देन दिस इज द एक्सेल 6. ठीक है. और लास्ट के 2 हैं वो होते हैं सिनर्जिड्स. ठीक है. सो 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स. ये सब हमारे प्रेजेंट होते हैं एक एम्ब्रियो सैक के अंदर. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये हो गया 8 न्यूक्लिएट. अब जो हमारा प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन का. एंड इसमें क्या हो रही है? डबल फर्टिलाइजेशन. तो अब डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि 2 मेल गैमीट्स अपना वे पाथ बनाते हुए कहाँ से आ रहे हैं? They are coming through the pollen tube. They have entered inside the ovary. Through the ovary, they have entered in the ovules and then to the embryo sac. अब क्या हो रहा है? अब जैसे ही एक मेल गैमीट, that is the first male gamete, जो फर्स्ट मेल गैमीट होगा वो कहाँ आएगा? इट फ्यूजेज विद द एग. जो फर्स्ट मेल गैमीट होगा वो यहाँ आके फ्यूज हो जाएगा विद द एग. दिस इज द एग सेल. यहाँ पे आके फ्यूज हो गया. आफ्टर द फ्यूजन इट फॉर्म्स जाइगोट. यही बोला था हमने कि जब एक मेल गैमीट फ्यूज करता है विद अ फीमेल गैमीट इट फॉर्म्स जाइगोट. वेरी सिंपल. तो इसमें भी यही हुआ. फर्स्ट मेल गैमीट कहाँ गया? एग सेल के पास गया, उसने फर्टिलाइज किया, फ्यूज किया और क्या बनाया? जाइगोट. गॉट इट. अब बात करते हैं सेकेंड मेल गैमीट की. नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू द सेकेंड मेल गैमीट? अब सेकेंड मेल गैमीट क्या करता है? आता है और फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से. ये 2 क्या हैं? पोलर न्यूक्लियाई. तो सेकेंड मेल गैमीट आएगा और फ्यूज करेगा विद द पोलर न्यूक्लियाई. फर्स्ट किसके पास आया था? एग के पास. ठीक है. और उसने क्या फॉर्म किया था? जाइगोट. पोलर न्यूक्लियाई के पास क्या आया? सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करा और क्या बनाया? एंडोस्पर्म. ठीक है. अब हमारी 2 चीज़ें फॉर्म हो गई. एक हुआ जाइगोट, एक हुआ एंडोस्पर्म. तो मेन अब ये बात है कि जो एंडोस्पर्म है वो करता क्या है? एंडोस्पर्म इज बेसिकली प्रोवाइडिंग नरिशमेंट. along with nourishment it also takes care, it nurtures the embryo. ठीक है. और उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. ठीक है. नर्चरिंग मीन्स प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, द शेल्टर, द फूड कंडीशंस, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय एंडोस्पर्म. सो नाउ एंडोस्पर्म इज टेकिंग केयर ऑफ द जाइगोट. ठीक है. अब हमारी 2 चीज़ें मैंने बता दी. अब what is the term known as? When male gamete fuses with the egg cell, जो first male gamete होता है जब वो fuse करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? syngamy. Right? It is known as syngamy or it can also be called as generative fertilization. ठीक है. अब उसके बाद जो सेकेंड मेल गैमीट था जो आके 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हुआ है, अब वो क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म बनाते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. अब मैम वाई इज इट नोन एज ट्रिपल फ्यूजन? हम बात ही डबल फर्टिलाइजेशन की कर रहे हैं तो ये ट्रिपल फ्यूजन कैसे हो गया? ट्रिपल फ्यूजन ये इसलिए वो हुआ बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं? 2 इन नंबर और मेल गैमीट कितना है? 1 इन नंबर है. ये सेकेंड मेल गैमीट लेकिन नंबर कितने हैं? हाउ मेनी आर देयर? ओनली 1. सो दैट इज वाई 2 + 1 इट विल बी 3. 3 of them they are fusing together. That is why it is known as triple fusion or it can also be called as the vegetative fertilization.
ठीक है। अब ये दोनों इवेंट्स जो होते हैं दे टेक प्लेस टुगेदर, दैट इज़ वाई द प्रोसेस इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद हमारा जो भी फ्लावरिंग होता है, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड दैट फॉर्मेशन, वो आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। दैट यू विल बी स्टडिंग इन क्लास 12th, आई थिंक, नॉट इन क्लास 10, दैट इज़ नॉट इन क्लास 10th, वो आप पढ़ोगे क्लास 10th में 12th में। सो इसमें आपका जो काम की चीज़ है वो यही है, दो चीज़ें हैं मेन। पहला, हमें याद रखना है कि मेल गैमीट दो हैं, दो मेल गैमीट में से जो पहला वाला आएगा वो एम्ब्रियो सैक में कहाँ पे जाके फ्यूज़ करेगा, एग के साथ, क्या बनाएगा, जाइगोट। प्रोसेस क्या है, सिनगैमी। ठीक है। सेकंड चीज़, सेकंड मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट का क्या हो रहा है, जा रहा है किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, पोलर न्यूक्लियर के साथ। वो कितने नंबर में है, 2। तो मेल गैमीट उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन या फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और इसको क्या फॉर्म होता है, इससे एंडोस्पर्म। सो एक से एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, एक से जाइगोट फॉर्म हो रहा है। तो एंडोस्पर्म इज बेसिकली नरिशिंग द जाइगोट। So that is why these two fertilizations when they are taking place together, तो उसको हमने क्या बोला है, डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर, वेरी सिंपल, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। So in the next video we'll move on to the fertilization and the reproductive organs in case of human beings, right? In case of animals we'll study about that. And so then take care everyone, and do like my video, subscribe to my channel, share it with your friends. So stay tuned to the next video, and I'll see you in the next video.